Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 4th of November and all the important articles are here as follows. पहला है Scindia Lays. He is Mr. Jyotiraditya Scindia. He is the Ministry of Development of Northeastern Region. He has led foundation for projects worth 635 crore. ठीक है? And he has said that Assam is the heartbeat of Northeastern development. ठीक है? Second है भूपेन हजारिका अवार्ड्स प्रेजेंटेड टू 6 eminent पर्सनालिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो भूपेन हजारिका अवार्ड जो है मे बी इट कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। आज के टॉपिक जो है ज्यादातर प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है एक्सेप्ट फॉर द टॉपिक नंबर 1। ठीक है, तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है बिकॉज सेंटिनरी ईयर है भूपेन हजारिका जी का जो है सेंटिनरी ईयर। तो ये जो है ये आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट इज लखनऊ एंटर्स यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। उनका जो अवधि क्विजीन है ना उसके कारण ये जो है इट हैज एंटर्ड द लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला है सिंधिया लेस फाउंडेशन फॉर प्रोजेक्ट फॉर 635 करोड़। ठीक है, तो असम एज द हार्ट बीट ऑफ राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, मैंने आपको बताया उन्होंने ऐसा कहा है, तो इट इज ट्रू ओनली। असम जो है इज द हार्ट बीट एंड if you see the growth trajectory of northeast it is very high and बहुत ही steady pace में grow कर रहा है and all the northeastern state especially Assam बहुत ही फास्ट पेस डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया inaugurated Northeast Science and Technology Cluster at IIT Guwahati में NEST Northeast Science and Technology Cluster and led the foundation strength for transformative projects worth 635 crores. The project aimed to accelerate growth, improve connectivity, create new opportunities throughout the state. ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अनाउंस किया एंड आपका नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक जो क्लस्टर है उसको डेवलप यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, the key initiative includes construction of 65 new secondary school buildings worth 455 crore, upgradation of Choigaon Ukyum road costing 102 crore, RCC bridge है सिलोनी जन धनसिरी पार घाट for 20.5 crore, development of Ramphal Bill in Kokrajhar and Lucky Bazar in Baksa, okay, worth 1440 and 1840 crore respectively. Noted that every brick laid in every classroom is represents a promise fulfilled in service of the aspirations. तो स्कूल बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, रोड्स ब्रिजेस सब कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाने के लिए यहाँ पर पैसा जो है दिया जा रहा है। So, addressing the gathering, Scindia described Assam as the heartbeat of the rising northeast, where mighty Brahmaputra stands as a symbol of continuity, courage and creativity. Very true. ठीक है, जो ये आपको भूपेंद्र हजारिका जी के गाने पे भी देखने को मिलेगा, या फिर if you see it as a cultural metaphor also, it is very true that Brahmaputra is the symbol of change, continuity and transformation. ठीक है, continuity, courage and creativity का जो है ये एक symbol है and like whether it is raining or it is snowing or it is you know it is a very sunny day or a very it is a very cold day, ब्रह्मपुत्र कंटिन्यूज टू फ्लो, राइट। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कहाँ को जा रहा है उनको नहीं पता, दे आर जस्ट फ्लोइंग, दे आर जस्ट वर्किंग, दे आर जस्ट क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग न्यू फीचर्स, राइट, न्यू एंड ओल्ड फीचर्स। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड आई थिंक personally also it's a very important metaphor. ठीक है, for me also I think rivers represents the life of an individual, right? Even if some tragedy happens, it does not stop. It continues to flow, right? So does our life. Life तो continuously move होगा ही होगा। आप कुछ अच्छा अचीव करें या कुछ खराब भी अगर आपके साथ हो रहा है, it is going to continue. A new day is going to come, right? So similarly, like टाइम जो आगे बढ़ चुका है, नदी भी तो आगे बढ़ चुका है, राइट। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटाफर। ठीक है, आई थिंक people need to more give more emphasis on that. Emphasizing the success of Act East policy, he highlighted how improved connectivity and cross border trade have strengthened
रीजन इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है साउथ ईस्ट एशिया के सामने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। और देखो जैसे भूटान, बोडोलैंड एंड बंगाल वाला जो रीजन है वहां पे बहुत टाइम जो है, ट्रेवल जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, जैसे अखौरा से अगरतला, मतलब अब बांग्लादेश पहुंचने के लिए हम लोग अगरतला से अखौरा की ओर जा सकते हैं। देन मोंगला पोर्ट है, राइट, मोंगला पोर्ट को हम लोगों ने कनेक्ट किया, तो जो टाइम कितना है 31 आवर्स से रिड्यूस होकर अब सिर्फ 10 आवर्स रह गया है रेल एंड रोड लिंकेजेस के द्वारा। ठीक है, The event was attended by senior officials from Assam government, जो कि बहुत सारे अलग अलग मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मेंबर ऑफ साइंटिफिक एंड एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी है, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अप विकसित, ठीक है, विकसित पूर्वोत्तर इज डेवलप्ड नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? चलिए, भूपेन हजारिका अवार्ड्स प्रेजेंटेड टू 6 एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेजेंट किया है भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड टू 6 एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज ये याद रखना। हाँ, नाम जो है वो याद रखना। Paying tribute, Scindia said that Dr. Hazarika connected India's diverse people, culture, and traditions through music, using it as a force to inspire human spirit like the flow of Brahmaputra. Right? मैंने आपको जैसे बोला कि ब्रह्मपुत्र को रेफरेंस में रखते हुए भूपेन हजारिका जी ने बहुत सारे गाना गाया है। ठीक है, बहुत सारे गाने हैं, राइट, तो वो जो है काफी इम्पोर्टेंट है इस करंट कॉन्टेक्स्ट में भी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 2012 by Sarhad, a Pune-based social and cultural organization, carries a cash prize of 51,000 rupees, a citation and a memento, a shawl from Maharashtra and a gamosa। क्योंकि पुणे में से तो शॉल भी एक दिया जा रहा है और क्योंकि भूपेन हजारिका जी के नाम पे तो एक गामोसा भी दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिविजुअल्स को दिया जाता है हु हैव एक्सेल्ड इन नेशनल इन वेरियस फील्ड। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों में कौन कौन है, जैसे दिस ईयर्स रेसिपिएंट्स वेर लाइशराम मेमा देवी फ्रॉम मणिपुर, LR साइलो फ्रॉम मिजोरम, येशे दोरजी थोंगची फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, प्रोफेसर डेविड आर सिमले from Meghalaya, and Surjakanta Hazarika from Dr. Surjakanta Hazarika from Assam, and Rajani Basumatri from Assam। ठीक है, तो ये जो है ये 6 जो एमिनेंट पर्सनालिटी है इनको अवार्ड जो है दिया गया। ठीक है, The event presided over senior journalist and Nagaland University Chancellor Dr. Samudra Gupta Kashyap and was attended by dignitaries including Northeast Secretary Satyendra Bhalla and डॉक्टर भूपेन हजारिका's brother समर हजारिका। तो ये बहुत सारे इमिनेंट पर्सनालिटीज जो है वहां पर प्रेजेंट है। सरहद ट्रस्टी अनुज नाहर announced to set up late Jamnabai Firodia Northeast India Bhavan in Pune for the rehabilitation and education of girls from violence affected areas along with Bhupen Hazarika Music Studio and श्रीमंता शंकरदेव नामघर। ये सब पुणे में बनेगा। ठीक है, तो इंडियन असमीज कल्चर जो है इट विल गो टिल पुणे, राइट। तो यहाँ पे एक श्रीमंत शंकरदेव का एक नामघर भी बनेगा, भूपेन हजारिका जी का एक म्यूजिक स्टूडियो भी बनेगा एंड एक 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 इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया भवन भी बनाया जाएगा अंडर द नेम ऑफ लेट श्रीमती जमनाबाई फिरोदिया। और ये क्या है, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द वायलेंस अफेक्टेड एरिया, जैसे मणिपुर है इट इज अ वायलेंस अफेक्टेड एरिया है, और भी बहुत सारे एरियाज है, जैसे बोडोलैंड वाज अ वायलेंस अफेक्टेड एरिया। तो वहां के जो बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो हाउस है ये विल इनहिबिट दोज गर्ल्स। क्लियर? और नॉट जस्ट असम और नॉर्थ ईस्ट, पूरे इंडिया में कहीं से भी अगर गर्ल्स आती है तो वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, लास्ट न्यूज इज लखनऊ एंटर्स यूनेस्को लिस्ट एज क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो गैस्ट्रोनॉमी जो है ये खाना का उनका अवधि क्विजीन है, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, राइट। जैसे लखनवी kebabs are very famous, right? लखनवी गलौटी कबाब है, देन वी हैव अदर आल्सो, राइट। जैसे लखनवी बिरयानी है,
इट्स वेरी डिफरेंट प्रिपरेशन एंड ऑल टुगेदर, राइट। एंड बहुत ही पुराना हिस्टोरिक शहर है लखनऊ अपने आप में। एंड बहुत अपना उन्होंने अपने रूट्स को बहुत कैरी किया है, ठीक है। एंड सम सिटीज हैव दैट ओन एसेंस, राइट। उस शहर का कुछ अपना एक अलग सा जायका है या फिर अलग सा एक एसेंस है, राइट। सिमिलरली लखनऊ, अगर आप बनारस जाएंगे वहां पे एक अलग फीलिंग आएगा आपको, ठीक है, एक बहुत ही अलग एसेंस है। इफ यू गो टू कैलकाटा ऑल्सो ना, इट हैज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। तो ग्वालियर जाएंगे तो वहां आपको एक अलग अच्छा फील आएगा। देन अवध के स्टेट्स जाएंगे तो बहुत ही यूनिक अपना उसका एक शहर का आइडेंटिटी बन गया है, ठीक है। तो ये इसीलिए लखनऊ को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर गैस्ट्रोनॉमी, पिछले बार जैसे कोझिकोड को लिटरेचर में एंड ग्वालियर को म्यूजिक के लिए दिया गया था 2023 में, और 2024 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ गया था। तो 2020 ये वाला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, अगले साल प्रीलिम्स में आ सकता है। एंड नॉट जस्ट प्रीलिम्स यूपीएससी का, पर प्रीलिम्स एपीएससी का भी आ सकता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये, इसको प्लीज मार्क करके रखें, ठीक है। At the 43rd UNESCO General Conference in Uzbekistan, Lucknow was declared as the UNESCO Creative City for Gastronomy, celebrating the rich Awadhi cuisine, culinary heritage and cultural diplomacy through food. ठीक है। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी जो है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर की इंडस्ट्रीज जैसे ये इट इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर सिटीज दैट यूज क्रिएटिविटी एंड कल्चरल इंडस्ट्री। तो क्रिएटिविटी है और कल्चरल इंडस्ट्री, लोग खाना खाने जाते हैं वहाँ पे, चिकन कारी का कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, राइट। तो क्रिएटिविटी भी है लेकिन इंडस्ट्री भी है वहाँ पे। की ड्राइवर्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ऑब्वियसली लखनऊ इज एन अर्बन सिटी, तो अर्बन डेवलपमेंट भी हो रहा है लेकिन touching their roots, right? Rooted in their roots. तो एस्टेब्लिश कब किया गया 2004 में। तो इसमें ये जो क्रिएटिव सिटी का अवार्ड है, प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग सिटीज इन्वेस्टिंग इन कल्चरल क्रिएटिविटी एंड एज टूल्स फॉर इंक्लूसिव, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लखनऊ को दिया गया है रिसेंटली, ओके, 2025 में। क्लियर हुआ? Alright. With this, we have come to end of today's session. If you've liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next section very soon. Till then, take care and thank you.